Okay, so 19 question क्या लिखा है? It is x plus I a plus 3i upon 2 plus 3i. So a plus 3i upon 2 plus 3i equal to 1 minus 5. ये दिया है क्वेश्चन and so that 5 minus 7 equal. So that हमको क्या बोला? 5a minus 7b. तो ये कैसे प्रूव करेंगे? या so that का पार्ट. So what we will do is we will find the values of a and तो ना हो गया find the values of a and तो a का वैल्यू फाइंड करना है, b का वैल्यू फाइंड करना है, and फिर इसको हम पे सब्स्टिट्यूट करेंगे by a minus 7. ये वाला एक सब्स्टिट्यूट होगा and फिर कैलकुलेशन करेंगे, नंबर्स को का माइनस करेंगे. So that simple सा क्वेश्चन है. So what we are supposed to do is we are supposed to solve by minus 7. We have to find the values of a and. Okay. तो सॉल्व करके देखते हैं इसके बाद यहाँ पे ये पार्ट को कैसे सॉल्व करें. पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेट कॉन्जुगेट नहीं करेंगे. फर्स्ट स्टेप आई विल यूज अल्टरनेट. ये क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट किया तो मेरा वेरिएबल या सिंक टर्म जो होती है वो भी कॉन्जुगेट है, दैट विल बिकम मोर. तो बेटर क्या रहेगा कि हम लोग इसको यहाँ पे इसका conjugate 1 minus I का करेंगे, that will be more. For this, I will write it as a plus 3i upon 1 minus I. And this will become, this is 2 plus b. तो क्यों कर रहे थे? क्योंकि तो फिर 1 minus I का conjugate है, तो 2 plus b आएगा तो obviously 2 plus b आएगा, conjugate करने से ज़्यादा एक ही होगा. That we find the conjugate of 1 minus I. So कोई दिया है, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे रिकॉर्ड अंडरस्टैंड. Everyone is clear with this? Okay. So we will conjugate किससे करें? 1 minus I. What is conjugate of 1 minus I? 1 plus I होगा फिर. So this is conjugate 1 plus I. यहाँ पे भी क्या है? 1 plus. मैं इस तरह का conjugate भी करूँ. There is no one missing steps. So यहाँ पे मैं इसी step में conjugate start. Now let us multiply the value. तो यहाँ पे multiply करें. So ये क्या हो जाएगा? 1 into 3. So that is. फिर यहाँ पे क्या आएगा? Plus 3i. यहाँ पे क्या आएगा? Plus 3i. और यहाँ पे क्या आएगा? Plus 3i. इसका क्या आएगा? This is a plus b into a minus b. A plus b into a minus b square. That will become a square minus b square. और equal to क्या आएगा? This is 2 plus b आएगा. I square का वैल्यू क्या होता है? minus. So this will be a plus. Okay. यहाँ पे देख सकते हैं मैं I common. So I can write it as 3 plus a into r. I square का वैल्यू है और ये भी आएगा I square का वैल्यू. So माइनस यहाँ पे I square का वैल्यू. So this is into minus 1 equal to आएगा this is 2 plus b. So ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 plus 1. Obviously that will become. और यहाँ पे रियल पार्ट को भी साथ में लिखा हूँ. So I will write it as 8 minus 3. इतना आएगा this is 3 plus a into I equal to 2 दूसरा हो जाएगा 4 plus 2 और 5. So we have to compare this. So what is the real part in this? This होता उस टाइम पे करने का ना लगे कि लॉगिन करके लेक्चर चालू करके फिर जाने का ना, मोबाइल साइड में रख सकते हो ना.
Hello. Get out of this doorway. Get out of it. Online students. After the year, and online students, I will quickly recover. I think that is. But I'm already prepared to leave. So after that, I think यहाँ पर ये part है. उसमें ये part है. A minus 3. A minus 3. यहाँ पे ये part है. यहाँ पे ये part है. 4. यहाँ पे imaginary part है. So let us substitute these values over here. So I can say a minus 3 equal to क्या आएगा? And 3 plus a equal to यहाँ पे क्या है? 2b. I नहीं होगा. So यहाँ पे 3 plus a equal to you will get. तो देखो यहाँ पे एक और minus 3 उस तरफ आ जाएगा. Hello, sir. Sir, your voice is breaking. Clear नहीं है. Just check it when I open it. ठीक है. I will so यहाँ पे a का value equal to क्या होगा? So I will substitute this value over here. A equal to 7. So I will get 3 plus 7 equal to 2. So इतना हो जाएगा 10. 2 equal to 5 5. equal to 10. Equal to 5. इनको प्रूव क्या करना है? So that क्या? 5 So that it was 5 minus 7 equal to क्या देना? तो भी मैं a और b का value को substitute करता हूँ. So what is the value of a? 7. And what's the value of b? 5. So ये हो जाएगा 35 minus 35. Obviously you have 0. इधर आप लोग इस साल बोलेंगे वो बोल रही है तू बोल रहा है हाँ आ गया ऐसा इधर जाते हुए क्लास छोड़ के वो साइड में चले जाओ जाना ऐसा नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँ मैं कुछ भी नहीं होता it shouldn't be that racist one काला पानी को बोलते ना लिखने दो पता नहीं तुम लोग का कॉलेज अच्छा लग रहा है नहीं सोच नहीं रहे पर दूसरा होगा बटन बनता है
तुझे पता है बटन कौन सा है? कौन सा है? कौन सा बटन? हाँ, सर को आने का सर को बोलता हूँ। सर को अरे सर को मार मिलता है इसमें दूसरी इतना मिलेगा। आ रहा है इतना गर्मी दृश्य में कह सकते हो सच्ची में सर he's telling that he wants to switch off the fan. It's giving. हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रहा है अभी? Yes, sir. ओके, तो आई यूज़ माई फ़ोन फॉर ऑडियो आज के लिए। मे बी कुछ नेटवर्क का इशू है इस वजह से। ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर क्या था? दैट वाज 19 राइट। 20th हम करते थे। So what is given in the 20th question? रीड करके देखो आप पे क्या हो रहा है। x plus i y इक्वल टू बताया इट इज रूट ऑफ a plus i b अपॉन c plus i d, करेक्ट? And we have to show that x square plus y square the whole square equal to a square plus b square upon c square plus d. So if you just see the arrangement of the numbers, which particularly वहाँ पे square हो रहा है, okay? So that is something different happening over there. इस वजह से सम को भी हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। Okay. So what is given in that? X plus iy equal to root of a plus ib upon c plus I. Okay. And we have to prove that x square plus y square the whole square equal to a square plus b square upon c square plus d. अब ये सम एक्चुअली बहुत इजी है, बट how we are solving it? वो पहला स्टेप ही सबसे इम्पोर्टेंट। So x plus iy equal to root of a plus ib upon c plus id. If you observe the terms over here, यहाँ पे सब x square और y square हो जा रहा है, a square b square हो रहा है, c square d square हो रहा है। तो इसके देखो यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए कि I can get x square over that, y square over there, squaring on both. But नहीं, if you are squaring on both the sides, I will not just get x square and y square, right? वो तो a plus b the whole square हो जाएगा. That is not going to solve the problem, correct? Something else. तो इसके देखो सिर्फ x square और y square होना चाहिए. x square plus y square अगर लेके आना है, okay? I have x plus i y. If I want to get x square and y square, obviously देखो यहाँ पे i भी निकल जा रहा है, i निकल जा रहा है मतलब i square भी हुआ होगा। i square का वैल्यू क्या होता है? -1। मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस हो रहा है, क्या हो रहा होगा? गेस कर सकता है? Yes, conjugate use होगा, ठीक है? That is the important step in this, that we have to use the conjugate, ठीक है?
तो x प्लस आई वाई का टर्म को देखो, ये क्या है, इट इज रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। तो सोच के बताओ x माइनस आई वाई का वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए? अगर x प्लस आई वाई का वैल्यू है रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, करेक्ट? तो ये काफी लॉजिकल है कि x माइनस आई वाई का वैल्यू होगा रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई। डाउट इन दिस? कोई क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या किया है, वी हैव रिटन द कॉन्जुगेट ऑफ द एंटायर टर्म। दिस पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, ऑब्वियसली अभी क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस आई बी a प्लस बी इंटू ए माइनस फॉर्मूला यूज। So multiplying both the equations. Okay, multiplying both equations. So x plus iy into x minus iy equal to root of a plus ib upon c plus id। और यहाँ पे अब क्योंकि ये भी रूट पे है और ये भी रूट, दोनों रूट क्या है, करेक्ट? तो मैं एक ही रूट में सबको लिख दूँ। So I can do that. I can use indices over here. So a minus ib upon c minus id। क्या ये स्टेप में किसी को भी कोई डाउट है क्या? तो हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, LHS LHS मल्टीप्लाई हो गया, RHS RHS मल्टीप्लाई हो गया, एंड यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे जो RHS का टर्म था उसको सबको एक ही रूट। So can we see this is a plus b into a minus a plus b into a minus b क्या होगा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस, अभी इसका स्क्वायर करना है, करेक्ट? तो ये हो गया आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। तो आई विल गेट a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे, करेक्ट? So next step will be obviously substituting the value of I square. What is the value of I square? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सब में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट? So I will get x square plus y square is equal to root of a square plus b square upon c square plus। और सोच के देखो, इसको देखो और इसको देखो, और सोच के बताओ बीच में क्या स्टेप होना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रूट है बट इस तरफ तो रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर भी दिख रहा है। तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू परफॉर्म इज स्क्वायरिंग ऑन, तो जो है ये अपना क्या है, तो आप लोग लिखो इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ऑडियो क्लियर है अभी? एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग नाउ? ठीक है, तो आप इसको लिखो अभी, आई विल बी बैक। क्वेश्चन है एग्जैक्टली रिटर्न का कॉन्जुगेट डिक्लेयर करना है, स्क्वायरिंग करना है, तो आप लोग उसको ट्राई करो। वेरी कंप्लीट। ये क्वेश्चन है 21st, a प्लस आई बी so a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus
तो ये वैल्यू है जो दिया a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus, and you have to show that a square plus b square equal to 1. काफी इजी सा है ये, कॉन्जुगेट लो पूरे टर्म का, मल्टीप्लाई करो, सेम जैसे पहले किया था वैसे ही करो. ओके, आगे आंसर. लेने का जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई ना अपने आप टर्म्स मल्टीप्लाई होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ये सम को अटेम्प्ट करके देखो. a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus I here. You will take the entire term conjugate. Okay, you will take the conjugate of the entire term and then multiply both the equations. हमने पहले वाले सम में किया था वही स्टेप्स करो. You should be getting the answer quite easy. I square का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट होगा. All that idea that is previously आप वही करो तो आ जाएगा. Done. यहाँ पे कैसा होगा कि यहाँ पे I square का वैल्यू क्या होता है -1 माइनस by 2 by 2. Done. सबका आंसर आया. okay. अभी कुछ मैंने आपको बोला था ये सॉल्व करके देखो. आई एम श्योर कि आप सबने कैसे सम को सॉल्व किया. यू हैव रिटन दिस इज a minus ib इक्वल टू 1 minus I upon 1 plus I, बराबर. फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a plus ib इंटू a minus ib इक्वल टू 1 plus I upon 1 minus I इंटू 1 minus I upon 1 plus I. फिर आपने इसको लिखा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. फिर उसने आई स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व किया, बराबर. हाँ, तो यही पे कट किया. ओके, व्हाटएवर. तो बट आप अगर चेक करके देखो तो आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं था. यू कैन से 1 प्लस आई यहीं पे कट हो जा रहा है और 1 माइनस आई यहीं पे कट हो जा रहा है और 1 वहीं पे बनेगा. बट आई एम श्योर आप सबने ये नहीं, यू मस्ट हैव रिटन 1 मोर एक्स्ट्रा. बट ध्यान में रखो, आप एक्चुअली डायरेक्ट कैंसिल, और इजी था ये सब. तो वही जो चीज़ आपको सिखाया वैसे ही मत सोचो, थोड़ा एक्स्ट्रा अपना इमेजिनेशन भी यूज करते रहो, कुछ और स्टेप्स करेगा. नेक्स्ट वाले सम पे जाते हैं. तो इसमें क्या लिखा है 24th में उसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y to satisfy the following equation. x y belongs to real numbers. तो वही मतलब जैसे हमने सम नंबर क्या किया था, थर्ड किया था, वहाँ पे a और b फाइंड करते थे, यहाँ पे x और y फाइंड. वेरी सिमिलर टू दैट. So this is the 24th question directly now. ये 22 और 23 वगैरह तो हो गया था. 24th question first, x plus 2y plus 2x minus 3y plus 4i equal to 5.
तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करना चाहिए, पहले तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड ऑल द नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे। So I can write this as x plus 2y plus 2x minus 3y into I equal to 5 minus the numbers एक तरफ variables एक तरफ ऐसे। Now I can see what is the real part। यहाँ पे LHS में real part क्या है और उसका imaginary part क्या है? 2x minus 3। Real part, imaginary part जो I के साथ है वो, so that is 2x minus। यहाँ पे real part क्या है और imaginary part सिर्फ minus। तो आप हम लोग बोल सकते हैं therefore by equality of complex numbers। So by equality of complex numbers, okay, so I will get x plus 2y equal to x plus 2y equal to क्या आएगा 5 बराबर। तो x plus 2y equal to क्या आएगा 5 और 2x minus 3y 2x minus 3y equal to क्या आएगा I नहीं होगा सिर्फ माइनस। यहाँ पे इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन सबको याद है साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये एक वैल्यू को आपको सेम करना पड़ेगा। तो इट वुड बी बेटर इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 बाय, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय 2 तो x सेम हो जाएगा। देन फिर उसके बाद हम कर लिया सॉल्व करने आ रहा आंसर पर। We'll get x equal to 1 and y equal to 2 as the answer. Online students are able to get the answer. Out. तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, सर 2x plus 4y equal to 10। ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा। Then you will subtract both the equations minus plus plus, so you will get 7y equal to 14, y equal to क्या हो जाएगा 2। फिर आप y equal to 2 को कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। फर्स्ट इक्वेशन सबसे बेस्ट था उसके लिए, तो दैट वाज x plus 2y equal to 5। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करना y का वैल्यू, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 1। दैट इज हाउ यू राइट। क्लियर है सबको ये सब? Let's go to the next second question। वहाँ पे क्या लिखा है x plus 1 upon 1 plus I। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है x plus 1 upon 1 plus I and y minus 1 upon 1 minus I। This is plus y minus 1 upon 1 minus I equal to क्या लिखा है, that is I, and we are supposed to find the value of x and y। obviously इसको हमको क्या करना चाहिए, what should we do? Correct। so the next step will be obviously to cross multiply। so आप हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। so that is what is the step that we have to perform। so यहाँ पे होगा x plus 1 into 1 minus I plus y minus 1 into 1 plus I upon 1 plus I into 1 minus I। Of course this is equal to, अभी ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट और ये ब्रैकेट a plus b into a minus b यहाँ पे यूज करेंगे। okay, so I will get x minus xi plus 1 minus I here। so x minus xi plus 1 minus I plus y plus yi minus 1 minus I upon a plus b into a minus b, a square minus b square equal to क्या हो जाएगा, this is I।
ओके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या, चेक करो। देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ये दोनों कैंसिल है। Okay? और कुछ तो कैंसिल नहीं, तो जो बच गया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे i² का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज i² इक्वल टू -1, सो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई विल राइट x प्लस वाई, ये दोनों को साथ में लिखा। i को यहाँ पे से मैं कॉमन लेता हूँ, सो आई विल गेट -x प्लस वाई इंटू i। माइनस आई हो जाएगा -2i अपॉन हो जाएगा दिस इज 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये -2 भी इधर आ जाएगा, +2 हो जाएगा। सो यू विल गेट x प्लस वाई प्लस -x प्लस वाई इंटू आई इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 2i और ये -2i उधर आ जाएगा, तो वो भी एक +2i हो जाएगा। 2i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 4i। So this is equal to 4i. What is the real part in this? इसका रियल पार्ट क्या है? प्लस, वहाँ पे रियल पार्ट क्या है? नहीं, वहाँ पे कोई रियल पार्ट है ही, obviously that is. यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 6 + 5, वहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है? Now we can compare. Okay, so यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं therefore x plus y equal to 0 and -x plus y equal to -4 plus 4, तो इक्वल टू क्या आएगा, प्लस। फिर आप सॉल्व करो, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा -y। फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट करना, x का वैल्यू मिलेगा, फिर y का वैल्यू, y का वैल्यू मिलेगा, फिर x का वैल्यू। एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक वैल्यू क्या होगा, तो अगर एक +2 आ रहा है तो दूसरा -2। क्लियर है ये सबको, कैलकुलेशन में डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर है, आवाज भी आ रहा है आपको सबको? यस, ऑडियो का इशू है किसी को? अभी एक्चुअली आई एम नॉट होल्डिंग द मोबाइल लाइक दिस ऑफ कोर्स, so are you able to listen to my lecture? ऑडियो क्लियर है सबको? Voice is not clear, but अभी तो just so same ऐसे I think third question is also exactly you will cross multiply and solve. So you can mark the third question as your homework. एक और sum करते हैं just, and we can start with the next. The next exercise, like I said, कि the second exercise has been deleted. The third exercise is also deleted. But second exercise में से हम लोग एक टाइप का sum करेंगे, finding the square root of a complex. That is something that is to be known by everyone. जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना जानते हो, वैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने भी आना। हम लोग वो भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड हो, एंड देन वी कैन गो फॉर द लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में भी आई थिंक वी हैव ओनली फर्स्ट 4 और 5 क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज नहीं है 1.4। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह स्टार्ट की, चैप्टर 2 स्टार्ट की। एक्चुअली यहाँ पे से कुछ टॉपिक्स था लाइक मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस तो ठीक है, दैट इज सिंपल, बट आर्ग्यूमेंट वाज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ टॉपिक्स था, बट दैट वाज लाइक आपके लिए तो वो सब डिलीटेड ही, बट एवरीथिंग इज सम रिलेशन। ओके, मैथ्स का ऐसा नहीं कि ये टॉपिक एकदम सेपरेट है बाकी सबसे और कोई टॉपिक बाकी सबसे सेपरेट है, ऐसा नहीं।
many topics are interrelated. So something when we are studying complex number, trigonometry is also related to it. तो ऐसा मत सोचा करो कि आपका जो भी मैथ्स का टॉपिक है वो टोटली डिसोसिएटेड है. अगर एक टॉपिक आप सीख रहे हो लाइक डेरिवेटिव सीख रहे हो तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, वो सब आपको हमेशा आना ही चाहिए. ये कर लिया, सबका आंसर आया. क्या आंसर है? 2 माइनस, तो आंसर आएगा 2 एंड -2 करके आएगा. तो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है. आई विल डू द फोर्थ क्वेश्चन एंड फिर हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट. So this is x into 1 plus 3i plus y into 2 minus I. This is equal to minus 5, अच्छा equal to नहीं है, minus 5 plus I cube equal to 0. So minus 5 plus I cube equal to, तो ये अपना दिया हुआ क्वेश्चन. So how are we going to solve this? Obviously, I will substitute I cube के लिए minus I लिखेंगे, सबको दूसरी तरफ. तो x और y का टर्म्स को एक तरफ छोड़ के बाकी नंबर्स को हम लोग दूसरी तरफ करेंगे. बट पहला स्टेप मैं ऐसे लिखता हूँ. So I will get x plus 3xi plus 2y minus yi minus 5 माइनस आई क्यूब का वैल्यू जो है माइनस आई इक्वल टू, कोई डाउट है? तो अभी यहाँ पे देखो, देयर आर 2 रियल पार्ट्स इन दिस. यहाँ पे एक x है और एक 2y है. तो दीज आर द 2 रियल पार्ट्स. दो इमेजिनरी पार्ट भी है डेफिनेटली, करेक्ट. तो यहाँ पे एक 3x है और एक यहाँ पे -y है. दीज आर द इमेजिनरी पार्ट्स. तो रियल पार्ट्स को साथ में रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में रखते हैं, और ये नंबर्स को हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे. तो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक x plus 2y plus 3x minus y into I equal to 5 plus, then you will compare. तो x plus 2y का वैल्यू कितना होगा एंड 3x minus y का वैल्यू क्या होगा? 1. इस बार वहां पे 1 into I. So this is equation 1 and equation 2. You will solve them simultaneously and you get the values of x and y. But आपका आंसर x और y फाइंड करना नहीं है. Your question is actually to find x plus y. ठीक है. तो x और y जो भी आपको आएगा आप उसको x plus y करके फाइंड करना. So let us then start with square root of a complex topic. टोटल आंसर फाइनल 3 आएगा. डिस्कशंस आप लोग कर सकते हो. ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस. ये सब तो ठीक है, साइमल्टेनियस. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. जो डिफिकल्ट होगा, जो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ आपके लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस. आई विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन द क्लासेस. तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 आपका फाइनल आंसर. एंड आउट इन दिस. ठीक है. तो नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे. तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. So this is something from exercise 1.2. Although it is a deleted topic, finding the square root of a complex number, but still it is something very basic. जैसे आप मल्टीप्लाई करना सीखते हो, जैसे आप डिवाइड करना सीखते हो, उसी तरीके से आपको स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करने भी आना चाहिए.
So I would say that it is better that we learn how to find the square root of a complex number. So let us find the square root of a complex number. So this is exercise 1.2 first question first sum. वहाँ पे first question first sum में क्या लिखा है? It is -8 -6 है करके. अब क्वेश्चन है find the square root of the following complex numbers. और पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? That is -8 -6. तो एक्चुअली ये अपना क्वेश्चन नहीं, नॉट आवर. अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8. अपना क्वेश्चन, तो ऑल्दो वहां पे लिखा है -8 -6 है, बट एक्चुअली इट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ. ये अपना. नाउ वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. तो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर. So I will say let a plus bi be equal to -8 minus. तो ये जो भी स्क्वायर रूट है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या एज्यूम किया है? a plus. So we are now going to find the value of a and क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो मतलब मुझे उसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा -8 माइनस. क्लियर है सबको मैं क्या बताया? तो अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. a प्लस बी आई, ए का और बी का वैल्यू फाइंड करना. तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रूट के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ. आई वोंट बी एबल टू मच, लाइक रूट के साथ में ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर पाऊँ. तो आई विल स्क्वायर. So the next step will be squaring on both sides. Obviously स्क्वायर के साथ हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल है, रूट के साथ नहीं. So this is now a plus bi the whole square equal to -8 -6. Obviously root square करना है तो वो हट. Now this is a plus b the whole square. ठीक है, ये क्या है? a plus b the whole square. So this is a square plus 2abi plus bi square मतलब b square I square ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू -8 -6 है. डाउट है? तो ये हो गया अपना वैल्यूज. यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1. तो यहाँ पे -b स्क्वायर बचेगा. तो आई विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi इक्वल टू -8 -6. हम लोग ये सब कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? हम लोग को क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट करना है. बट वो कब मिलेगा? जब मुझे क्या मिलेगा? a और b. तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो अभी मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे कुछ इक्वेशन बन रहा है नंबर्स, तो वहां पे मेरे पास a और b वैल्यू फाइंड करने का चांसेस बन. करेक्ट. So now I can say what is a square minus b square equal to? a square minus b square equal to क्या होगा? नहीं नहीं, a plus b a minus b से ज्यादा फायदा नहीं. बेटर रहेगा कि हम लोग डायरेक्टली कंपेयर. तो a square minus b square equal to क्या होगा? ये आई स्क्वायर का वैल्यू जो था वो सब्स्टिट्यूट किया. आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस. तो ऑब्वियसली वो इसको माइनस करा. तो मैंने रियल पार्ट, क्योंकि इसमें भी आई नहीं था, इसमें भी आई नहीं था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8. और इमेजिनरी पार्ट क्या था? यहाँ पे 2ab और वहां पे -6. तो 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस. So we are now getting to the equation part. Now we have some chances to solve and get the values of a and b. तो भी इसको आगे कैंसिलेशंस करते हुए यहाँ पे ab का वैल्यू हो जाएगा -3. मैं b का वैल्यू फाइंड करता हूँ, दैट इज -3 अपॉन a. एंड इसको हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. तो b का वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगा, मतलब पूरा इक्वेशन a का वैल्यू, मतलब मुझे a का वैल्यू. हम लोग b को एलिमिनेट करें सो दैट वी कैन नाउ गेट द वैल्यू ऑफ ओनली a. तो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. आई विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. b स्क्वायर मतलब -3 अपॉन a का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -8. तो दैट इज a स्क्वायर अपॉन 9 a स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस
9 upon a square, that is minus 8. सबको a square multiply कर, multiplying throughout by a square. I will get this as a raised to 4 minus 9 equal to minus 8a square. क्या रहेगा? minus 8a square इधर आ जाएगा, plus 8a square हो जाएगा. So I will get a raised to 4 plus 8a square minus 9 equal to 0. Can you see that you can factorize this? क्या बताओ किसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 9 आता है? कौन से दो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने माइनस 9 आना, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 9 आना, तो 1 8 हो जाएगा 9 मंथ, ठीक है. और प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए. तो साइन के साथ बताओ, सोच के बताओ कौन प्लस कौन. प्लस 9 रहेगा, माइनस 1 रहेगा. 9 into minus 1 is minus 9. 9 minus 1 is plus 8. So my factors are now going to be 9a square minus a square minus 1 equal to minus 9 equal to आउट कोई भी. इसमें से कॉमन क्या आएगा? a square, अंदर बचेगा a square plus 9 minus 1 a square plus 9. तो a square plus 9 equal to 0 और a square minus 1 equal to a square equal to minus 9, a square equal to plus 1. अभी सोच के बताओ इसमें से एक वाले पॉसिबल नहीं, सब वाले पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं. क्यों नहीं पॉसिबल है? वो स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. a स्क्वायर का वैल्यू माइनस 9 कैसे आ सकता? बिकॉज a and b are real numbers. करेक्ट. स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होना. When we had defined complex number, if you remember, मैंने आपको क्या बताया था कि numbers of the form a plus b are, where a and b belongs to real number. तो a और b रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है कि वहां पे स्क्वायर उसका नेगेटिव है. करेक्ट. तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल. तो क्या पॉसिबल है? a स्क्वायर इक्वल टू, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1. तो अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा? a विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 ही होगा, बराबर. बट और कुछ लिखना चाहिए आपको? सिर्फ 1 ही लिखना है बस, और कुछ प्लस और माइनस होगा डेफिनेटली. वहां पे a का वैल्यू क्या होगा? प्लस और माइनस. वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. अब हम लोग को b का वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू चाहिए b का. ठीक है. तो b का वैल्यू क्या था? देखो -3 अपॉन a. b का वैल्यू क्या था? दैट वाज -3 अपॉन a. जैसे प्लस पार्ट के लिए सॉल्व करा -3. तो आई विल सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू -3 अपॉन a का वैल्यू मैं क्या रखता हूँ? प्लस. मेरा आंसर क्या आएगा? -3. करेक्ट. तो माय आंसर वाज a प्लस b i. बराबर. आंसर क्या था? a प्लस b i. तो a का वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ? +1. और मेरा b का वैल्यू तभी क्या आ रहा है? -3. ठीक. तो ये मेरा एक आंसर. और मेरा दूसरा रूट क्या होगा? therefore सेकंड रूट या दूसरा स्क्वायर रूट जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली इसका नेगेटिव होगा. सो इट इज -1 -3 माइनस ऑफ 1. दो रूट होता था ना हमेशा, एक +2 होता था और दूसरा क्या होता था? उसका माइनस. एक ये है 1 -3 है, दूसरा इसका क्या है? नेगेटिव -1 तो ये जो है दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ. तुम लोग बोल सकते देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i इक्वल टू ±1 ये जो है ये क्या है? दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -8 फिर अगर मैंने माइनस पुट किया होता तो फिर मुझे नेक्स्ट वैल्यू जब लिखना होगा तो मुझे प्लस करना. हाँ तो देखो ना यहाँ पे जब मैं माइनस पुट करता हूँ 1 -3 है तो माइनस अंदर चला जाएगा. सो आई विल गेट -1 + 3. देखो a का वैल्यू -1 पे, b का वैल्यू +3. दोनों आंसर्स यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए. तो सिर्फ प्लस के लिए सॉल्व करो, नेगेटिव पार्ट तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव. ठीक है. अभी ये जो मैंने लिखा है आई एम सेइंग कि रूट ऑफ -8 - 6 का इसका रूट है 1 - रूट क्या है? 1 - बट क्या गारंटी है?
क्या गारंटी है किसका कि यही रूट है, तो मैं वो भी कंफर्म करके बता, इसका रूट ये है। तो ऑब्वियसली 1 माइनस 3i का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका आंसर क्या आना, -8 माइनस क्या आना, चेक करके देखते हैं। तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b बराबर a माइनस, तो आई गेट 1 माइनस 6i और ये हो जाएगा 9i²। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, तो ये हो गया -9 हो गया। 1 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे उसका गारंटी भी है, तो हमने फाइंड किया है वो उसका रूट। तो द स्क्वायर रूट ऑफ -8 माइनस 6 इज एक्चुअली 1। क्लियर है ये सबको? ये पार्ट आपको कहीं पे सॉल्व करके दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आपको ये कंफर्मेशन करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं, तो हम तो वहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है। ये सब यहीं पे खत्म हो चुका था, बट जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली आपने क्या फाइंड किया, इसके लिए मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप, कहीं पे भी आपको उसको सॉल्व करके या कंफर्मेशन करके दिखाना था। तो लिखो इसको सज्जन। तो दिस इज स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन ऑफ कोर्स, बट ये कैसा था, ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता था पहले तो, बट ऑफ कोर्स अभी तो क्योंकि डिलीटेड है तो नहीं पूछ, बट यू शुड नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ऑल द स्टेप्स remain exactly the same, just the numbers will change. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको ये सब समझ में आ रहा है? ऑडियो क्लियर है? अभी ध्यान में रखो कि अगर कोई और नंबर्स होता है तो ये पार्ट तो कैलकुलेशन में कभी चेंज नहीं, द नंबर ओवर हियर, सर ये स्टेप तो सभी हमने आपको करना है। देखो वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, दिस स्टेप तो है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर जो भी रियल पार्ट यहाँ पे से होगा वो आए, 2ab का वैल्यू जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो आए, फिर हम लोग b फाइंड करेंगे, b को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a फाइंड करेंगे, ऑल दैट विल फॉलो द सेम पैटर्न, सेम ही होगा सब कुछ, जस्ट नंबर्स चेंज होगा तो वैसे क्वाड्रेटिक चेंज होगा तो फैक्टर्स चेंज होगा, सब हल्का चेंजेस तो रहेगा, बट the sums will be
देख लिया इसे लोगों ने, देखो दिखा नहीं, फिर इतना हो गया, इससे अब आगे आप कर सकते हो, आपको पता है क्या करना है। ए स्क्वायर इक्वल टू 1, आप उसका रूट निकालोगे, ए का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस का, फिर आप बी में सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर प्लस का वैल्यू, नेगेटिव का वैल्यू आप लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हो प्लस माइनस। क्या लिख लिया सबने? वहाँ पे जो कंफर्मेटरी स्टेप्स किया हुआ है कंफर्मेशन के लिए कि हाँ भाई वही उसका स्क्वायर रूट है, वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, पीछे तो आप लिख के रख सकते हो, बट ये जो वहाँ पे लिखा हुआ लास्ट स्टेप था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व करने स्टार्ट करें। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आए। ओके, तो मैं थोड़ा सा जस्ट यही सम में जो भी हम लोग ने किया है मैं थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके बताता हूँ कि आपको क्या चेंजेस करना है, बिकॉज ऑल द सम्स आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सभी सम्स में आपको सेम स्टेप्स करना है, ये लिख लिया सब लोगों ने यहाँ तक। So we have to find the square root of 7 + 24i. ठीक है, देखो यहाँ पे, so we are solving the second question. So we want to find the square root of 7 + 24i करके बोलो, correct? So square root of 7 + 24i. Obviously next step क्या होगा, squaring on both. तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 24i, यहाँ पे भी आएगा 7 + 24i, यहाँ पे भी आएगा 7 + 24i, फिर आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसका वैल्यू आपको आएगा 7, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका वैल्यू आपको आएगा 24, तो वो इसको कट कर देगा, यहाँ पे 12 आएगा, एंड द वैल्यू दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर b इज 12 अपॉन, फिर आप 12 अपॉन एक और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। कैलकुलेशंस डज नॉट चेंज, सिर्फ नंबर्स थोड़ा चेंज। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करो इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 12 अपॉन a का स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, यहाँ से आगे तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। स्टार्ट सॉल्विंग योर सेकंड क्वेश्चन, सेम जैसे अभी किया था हम लोगों ने वैसे ही, बट ये फर्स्ट पार्ट मैंने थोड़ा सॉल्व करके बाकी का कैलकुलेशन था। समझ में आया है सबको? किसी को इसमें डाउट है कैसे करते हैं कैलकुलेशन? स्क्वायर रूट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So now we can directly start with exercise 1.4, that is complex cube root of minute. साइन के साथ बता। यस, मुझे इतना टाइम क्यों लगा फैक्टराइज करने के लिए? a square, sorry, a⁴ - 7a² - 144 = 0। शायद दो ही स्टूडेंट्स, दो नहीं 3 स्टूडेंट्स को देगा फैक्टर, स्टूडेंट ने इसका फैक्टर, बाकी किसी ने इसका करेक्ट फैक्टर लिखा ही नहीं। फैक्टर क्या है इसका? दिस इज a⁴ - 16a² + 9a² - 144 = 0।
सर इसका फैक्टर्स है 16 9 का 144 होता है, -16 प्लस 9 करो तो -7 दिया है. The correct factors are -16 and +9. 3 स्टूडेंट्स नहीं, बस इसको फैक्टर्स. प्रैक्टिस करो तुम लोग ये सब क्वाड्रेटिक वगैरह का, तो बेसिक है तुम लोग आना चाहिए. आगे जाके तुम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में इंजीनियरिंग में कहीं पे अगर आपको क्वाड्रेटिक आया तो नहीं बोल सकते ना कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा कोरोना लेके गया था, ना पड़ेगा सॉल्व आता है. तो एक वैल्यू ए स्क्वायर का -9 आएगा, ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल. और दूसरा वैल्यू ए स्क्वायर का 16 आएगा, जो पॉसिबल है उसके लिए आपको आंसर आएगा प्लस माइनस. माइनस जब इस तरफ आ रहा है +6, दूसरा वैल्यू जो है वो माइनस. तो a square equal to -9 is not possible. a square equal to 16 पॉसिबल है, आप उसको आगे सॉल्व करोगे. तो a square equal to 16, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा. देन b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था वो 12/8. तो we'll use 12/a का वैल्यू 4, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू +3 आएगा. So one answer is 4 plus 3i. The second answer is -4 plus. So both the answers are plus minus 4 plus. So this is the root of 7 plus 24 plus minus 4 plus. क्लियर है सबको कैसे कर रहे हैं स्क्वायर रूट? ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट यू शुड नो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मेथड कैसा है. बिकॉज फाइनली जब हम लोग इसको एंट्रेंस लेवल में देखेंगे तो फिर वहाँ पे तो ये सब करना ही है, वहाँ पे तो भाग नहीं सकते. तो वी हैव टू डू ऑल दिस टॉपिक लेटर ऑन एटलीस्ट. बेटर है कि थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो ये सब. You still have to do modulus and argument. That is something again important for your entrance point of view also. पर ठीक है, वो हम लोग सिर्फ एंट्रेंस के टाइम पे डिस्कस. स्क्वायर रूट मैंने सबके साथ कॉमन डिस्कस किया है, बट मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट हम लोग सिर्फ एंट्रेंस लेक्चर. So now we can start with the next topic 1.4, that is complex cube root of unity. तो थोड़ा सा फॉर्मूलास है complex cube root of unity का, तो एक बार वो फॉर्मूलास को कर लेते हैं. व्हाट इज द complex cube root of unity का फॉर्मूलास करके then we can start with the normal. अब ये एक्सरसाइज में जो आपको है, you have only up to question 5. You don't have the questions of complex numbers which are related to geometry, that is question number 6, and you don't have the questions also which are related to De Moivre's theorem, that is question 7 and 8. अगर आप पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है De Moivre's theorem, बट De Moivre's theorem जो है आपका पोर्शन से रिलेटेड है. ऑल्सो वहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैसा भी एक टॉपिक था, वो भी निकाल दिया है. तो मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी निकल गया. तो अभी बचा हुआ जो है अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमको करना है 5 तक ही करना है एक्सरसाइज में. तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, तो 5 सम जो है बहुत इजी. ठीक है, so we are discussing exercise 1.4 and the topic that we are going to discuss is complex cube root of unity. तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ
यूनिटी, ये टॉपिक हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फिलहाल के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं। लेट अस जस्ट सी व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसके बाद व्हाट डज दैट मीन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब यूनिटी का मतलब वो होता है, बट मैथ्स में हम लोग को यूनिटी का मतलब इतना तो नहीं। यूनिट्स, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस क्या होता है? तो यूनिट का मतलब क्या होता है? इट इज 1। तो जब अपना क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तो ये क्लियर है ज्यादा। अभी हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ये अपना टॉपिक। So we are trying to discuss the cube root of 1, but कैसा cube root होना चाहिए? That should be the complex cube root of। तो अभी ये समझते हैं यहाँ पे complex क्या है। cube root of 1 तो सबको पता है। cube root of 1 क्या है? cube root of 1 क्या है? प्लस माइनस 1 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि cube root of -1 है, cube root of +1 तो cube root of 1 is 1, ये तो सबको पता है। हर बच्चे को पता है कि cube root of 1 1 है। इतना कॉम्प्लेक्स क्या है? तो एक बार थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर इज समथिंग मोर देन दिस, ठीक है? सो वी आर डिस्कसिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ 1, बट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कैसा है? तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ, लेट दिस बी इक्वल टू x, आई विल क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आई विल गेट x क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? ये मेरा इक्वेशन है, मेरा इक्वेशन क्या है? x क्यूब इक्वल टू। अब इससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। Suppose if I take something like 2x equal to 6, suppose मैंने ऐसे लिखा 2x equal to 6, तो सही क्वेश्चन। तो उसके बाद इसका आंसर कितना है? कितना आंसर कितना है? एक ही वैल्यू। तो इसका कितना सॉल्यूशन है? एक, एंड दैट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3। इसका एक ही सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन आया? तो उसके बताओ यहाँ पे इफ आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका तो सॉल्यूशन आएगा गारंटी। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है दैट इज x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1। So there are two solutions for this. One is 4, the other value is 1. But there are two solutions. तो ये जो था, this was a linear equation. Why linear? Because उसका x raised to 1. A linear equation has got one solution. Okay. Linear equation has got one solution. Linear equation in one variable has got one solution. A linear equation, a quadratic equation in one variable will have, तो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। तो पावर 2 वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल विल हैव टू सॉल्यूशन। तो इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 3 सॉल्यूशन। से अभी तक आपने एक ही सॉल्यूशन बताया है, दैट इज 1। आपको पता है इसका एक आंसर 1, बट बाकी तो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स स्टडी। So there are two more solutions to this equation, and that is those two solutions are actually quadratic. They are complex. वो जो है they are complex. तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। We don't want to study about one. We know that one of the roots is 1. हम लोग का स्टडी उसके ऊपर है। Our study is about the complex cube root. तो वो कैसे ढूंढते हैं? So I will say this is x cube minus 1 equal to 0. Correct? I can consider this as a cube minus b cube. सबको पता है a cube minus b cube का फॉर्मूला क्या होता है? What is a cube minus b cube? ओके, ये इसका फॉर्मूला नहीं है। ये जो आपने बताया दिस इज a minus b द होल क्यूब।
ये इसका फॉर्मूला नहीं. व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब? इट इज नॉट a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर. वो तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है. तो आपको पता था करके मैं लिख रहा था. रिपीट कर. नहीं, ये भी वही फॉर्मूला. अगर तो a क्यूब b क्यूब डालेगी ना तो a क्यूब a माइनस b का फॉर्मूला ही फॉर्मूला. ठीक है, और कुछ? सबके अलावा और एक फॉर्मूला था, और कुछ? तू जो बोल रहा है थोड़ा कुछ इसके जैसा है, बट एग्जैक्टली वो नहीं. a क्यूब माइनस b क्यूब. ठीक है, दिखा दो. a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, इट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये उसका फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस. इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है. it has one more formula, that is a minus b the whole cube plus 3ab into a minus b. ये भी उसका एक फॉर्मूला है, बट हम लोग के लिए फिलहाल ये नहीं चाहिए. हम लोग को फिलहाल ये फॉर्मूला चाहिए. ये भी उसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस, बट आई डोंट रिक्वायर दैट सेकंड फॉर्मूला. ये मैं लिख के दे रहा हूँ बिकॉज देयर आर सम क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बट ये वाला यूज. देयर इज सम क्वेश्चन, तो मैं पहले लिख के बता रहा हूँ कि भाई ऐसा भी एक फॉर्मूला है, बट सम के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कौन सा यूज. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, द फर्स्ट वन फॉर माय कैलकुलेशन. आई डोंट वांट द सेकंड वन यहाँ पर. तो अभी ये a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है 1. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी मतलब x माइनस 1 इंटू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ऑफकोर्स यहाँ पे दो फैक्टर्स आएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. हमको पहले ही पता था इसका एक आंसर 1 है, तो हमको मिल गया. बट वी वांट दिस. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 1. So I can find what is the value of x, right? x का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला मेथड होगा. So it will be minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो ये अपना फॉर्मूला. इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो x इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बराबर 1 माइनस 4 बचेगा यहाँ पे. 1 माइनस 4 होता है माइनस. So I will get -1 plus minus root of -3 upon 2, that is -1 plus minus root 3i upon 2. x का ये वैल्यू, एक वैल्यू है -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 और दूसरा वैल्यू है -1 माइनस रूट 3i. इसका कितना रूट्स है, 2. एक है -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, दूसरा है -1 माइनस रूट. कहीं पे ऐसा सुना सुना सा लग रहा है, ये नंबर्स कभी पढ़ा था क्या आपने, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2. कभी ऐसा लग रहा है आपको, अरे मैंने कभी तो ऐसा नंबर्स पढ़ा. कहाँ पे सुना, हाँ कहाँ पे सुना क्वेश्चन था ऐसा वाला. क्वेश्चन करो, फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, नंबर 9. सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 17. तो अगर आपको याद है मैंने तभी भी आपको यही बोला था कि ये सम इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूला से कर. तो ये वो फॉर्मूला, तो वहाँ पे हमको क्या दिखा था, ए स्क्वायर का वैल्यू आता है बी, बी स्क्वायर का वैल्यू आता है. तो यहाँ पे वो सब फॉर्मूला था. तो ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना लिख के रखो. आई थिंक टाइम हो गया है.
तो अब फिलहाल के लिए आप इतना लिख के रखो, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं ये फॉर्मूला आगे ध्यान में तो आपको फॉर्मूलास वगैरह जो है मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री का एक सम है, तो कौन सा सम था, दैट इज द सेकंड एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट सम है शायद। तो सेकंड एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 2.2 का 2.2 का लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट सम है। वहां पे यू हैव टू प्रूव समथिंग लाइक cosec raised to 6 theta minus cot raised to 6 theta equal to ऐसे कुछ एक प्रूव करना है। So something like that, that is requiring this formula, okay, a cube minus b cube का सेकेंड फॉर्मूला वो यूज करेंगे। अगर ये यूज किया ना तो वो सम बहुत बड़ा है, बहुत ही डिफिकल्ट। ये फॉर्मूला अगर यूज किया ना तो वो बहुत ही 4 लाइन में खत्म हो। तो फॉर्मूला टू फॉर्मूला भी बहुत फर्क पड़ता है, क्या फॉर्मूला यूज किया है उसके ऊपर भी मैटर करता है। हमने गलत फॉर्मूला ले लिया और सम सॉल्व करने बैठे तो हमको जो सम हो सकता है 4-5 लाइन में खत्म कर सकते, तो 10-12 लाइन में भी शायद खत्म नहीं। तो ट्राई टू बी वेरी लाइक, जहाँ तक हो सकता है आप ग्रास्प करो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलास वगैरह ग्रास्प, बिकॉज कहाँ पे किसको यूज करेंगे कोई नहीं बोलता। काफ़ी सारा जितना आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे उतना आपके लिए अच्छा, आप नॉलेज रखो उतना अच्छा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई स्विच ऑफ द कैमरा नाउ so that भी जा सकते वो अपना कंपैरिजन मेथड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। ओके एवरीवन, आई जस्ट मैं मेरा मोबाइल से एग्जिट कर रहा हूँ, आप लोग भी एग्जिट हो सकते हैं।